all these scattered laws into one position. First, when they say use the word define, basically this define means to give the meaning to certain terms which were not being uh, defined or which were not being given meaning before prior to 1872. Amends mean what is already existing into the practice or into theory to change that. Whenever a particular act uses these three words, consolidate, define, and amend, the act is known as exhaustive. Exhaustive. Whenever there is these three words are being used, consolidate, define, and amend, law itself is an exhaustive. Law itself is an exhaustive. But try to understand why I am calling it exhaustive, whereas you read certain books which it call it non-exhaustive. So when you write it into mains examination, try to understand Indian evidence is per se an exhaustive law. Why it is an exhaustive law? Because the preamble is very clear. But if you read the short title and commencement, then you will find there are certain exceptions to this. When I say exception to Indian Evidence Act, that means there are certain situations where Indian Evidence Act does not apply. What are these exceptions? Let me read for you. Section 1. This act may be called Indian Evidence Act. It extends whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial other than court martial covered under Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Discipline Act 1934, the Air Force Act. What does it mean? It means Army law or naval laws or Air Force law. These are being exempted. That means Indian Evidence Act does not apply in these three. Not applies. So it is. I'm not saying court martial courts does not use Indian evidence. They can use Indian Evidence Act, but while they are dealing with certain type of process given on certain particular laws, for example, Army Act, Naval Dispute Act, then this act does not apply. Firstly, second situation, if you read the second situation, then you will find this says, but not affidavits presented to a court or officer, nor proceeding before the arbitrators. That is, affidavits this is the situation. What is the situation? Indian Evidence Act does not apply to affidavits, arbitrators, air, naval, and army laws. So when you read preamble, in the line of section 1, the preamble says it is exhaustive. However, section 1 carve out certain exceptions to this. And when a certain law is exhaustive, they does not normally have exceptions. But Indian evidence is per se an exception to this situation, that though it is an exhaustive law, but have certain exceptions. And that is why certain books called Indian Evidence Act as a non-exhaustive law. However, this situation can be explained very well with this scenario that Indian Evidence Act is exhaustive upon the points which are being dealt under Indian Evidence Act. Okay. What has been exempted, it does not apply upon them. That's why we can say that the Indian Evidence Act is exhaustive. So if you see Batuk Lal, if you see Ratan Lal, Dheeraj Lal, they say it's not exhaustive. But if you see Bentham, if you see Justice Munir, if you see Justice Sahir, if you see Sarkar, if you see Sarvai, then this says it's an exhaustive. The reasoning is this. So I will go with the exhaustive reason. The first question that answered is whether it is an exhaustive law or not. Answer is yes, it is an exhaustive law. Yet there are certain exceptions to it, no doubt. But merely because there are certain exceptions to this scenario does not mean that exhaustive nature of Indian Evidence Act
ends. So Indian Evidence Act is still exhaustive and equally applicable to all situations. First. Secondly, we have also done yesterday, it is an adjective law. This also we have discussed yesterday in a very little manner. Adjective law means supporting law, I will say. So if you see, try to understand this, uh, why I called adjective law. If you see, in certain book it is called procedural law. So certain book it will call procedural law. Whenever you are writing your answer of mains, you always write procedural law. But when it is about PT, it is adjective. PT answer is adjective law, remember. Okay. But when you write in a mains, you can write it as a procedural law. Why it is procedural law? Because it's health supportive. It is more supportive to procedural law. It is more into the process than to substantive part, and that is why it is considered as procedural laws. So if question is of PT, always adjective law is the answer. But if you're writing about means, you always say uh, procedural law. Why? Because it is much connected to the process of the court, and that is why it is acting as a procedural part, more into procedural part. So it tilts more towards the procedural law. That is why it is called procedural law. Right. Next is another question. Nature, whether it's a lex loci or lex for, इस पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. Indian evidence is a lex loci or lex for. What do you mean by lex loci or lex for? How many people know what do you mean by lex loci and lex for? Can anyone tell me? What do you mean by lex loci? Can anyone tell me? Raise your hand if you can. You want to tell me? I will unmute you. What is the difference between lex loci and lex foreign? Nobody. Arshullah Khan Sahab Khan. Where is Arshullah Khan? Hand raise. चलिए. देखिए, it's a law of land. Whereas lex fori is a law of. Try to understand what do you mean by law of land and law of forum. When I say law of forum, I mean suppose, try to understand a. So many people have given me answer on chat box. Lex loci में बोलना है, अच्छा सर्वन लॉक्स forum, law of forum, law of land, ठीक है. देखिए, लेक्स फॉरी लॉ फॉरम को समझ के देखते हैं. A and B have a contract in Dubai. Suppose they have a contract in Dubai. Suit is being filed in Delhi. Delhi court. Now what? Which laws to be applied? Whether the evidence of Act of Dubai is to be applied, Evidence Act of Dubai, or Evidence Act of India is to be applied. Answer is Evidence Act of India. Though the Contract Act of Dubai may apply, the rules and regulations of Dubai law may apply. But when it's come to giving evidence of those laws or question of acts or on questions of law, then the process of giving the evidence must be followed as per the Indian evidence. That is known as law of forum. यानी कि Indian Evidence Act means a law of forum. That means any person
belonging to any community, belonging to any citizenship, uh, any cause of action from any world, if applies to Indian code, if comes to Indian code, it will be governed by Indian Evidence Act. Only Indian code will not take the evidence. For example, Indian Evidence Act may, it's suppose it's a case of murder in Pakistan, trial in Delhi, trial in Delhi. It's a murder in Pakistan and trial is going in Delhi. In Pakistan, evidence given to police admissible. So if evidence to a police is given, it is admissible. This is the Pakistan law. But suppose in Delhi, in India, we know that the evidence of police not admissible. Try to understand. The murder has been caused in Pakistan. Let it be a murder of Indian only. Obviously, then only it will have the jurisdiction. The murder has been caused, and now the trial is going in India. While the trial is going in India, Pakistan have an Evidence Act in which this is, if a witness gives the evidence to a police officer, it will be relevant and admissible. Whereas in Indian Evidence Act, it is in the law that the evidence is given to a police cannot be made admissible. Now the person want to use Pakistan evidence because he says, I have given evidence to a police. Police has recorded the evidence and this person was arrested in Pakistan. The cause of action has arises in Pakistan and therefore the evidence law applies here also. The Pakistan Evidence Act. Answer is no. The Evidence Act of this Delhi, India will apply and this person will not be allowed to give evidence admissible given to a police officer. Right? How many people have understood? Indian evidence is a three things we have understood. It is exhaustive to extent. It is exhaustive. It is both adjective and procedural law. It is a law of lex for these three things we have understood. And yesterday we have understood the jurisprudence also, if you remember. If you remember jurisprudence, why we need Indian Evidence Act. These are all PT perspective, but important. How many people have understood this? चलिए इस पर लिखते हैं पहले थोड़ा सा. You can write upon this. Jurisprudence पे exhaustive nature पे lex for पे adjustment पे, ठीक है. फिर उसके बाद we'll be able to main part. देखिए. Importance of Indian evidence. या jurisprudence of Indian evidence. The importance of Indian Evidence Act lies in the fact that it is the duty of the court to bring justice and satisfy the concept of ubi just ibi remedium. That is it is the duty of the court to determine whether the particular
right or liability or disability or disability exist 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 in an individual or not, in an individual or not. And in order to determine all this, all this, the court have to, the court have to analyze, the court have to analyze, court have to analyze different facts, have to analyze different facts, proved and disproved, proved and disproved by the concerned parties, concerned parties. And it is here, and it is here, and it is here, where, here के बाद comma, it is here, where the Indian Evidence Act, where the Indian Evidence Act came into play, came into play, and provides what facts, what facts through which mechanism, through which mechanism, through which mechanism, and in what manner, and in what manner can be proved or disproved. Disproved. Full stop. Paragraph change. Whether the Indian Evidence Act is exhaustive or not. The Indian Evidence Act, the Indian Evidence Act uses the word define, amend, and consolidate. Uses the words define, amend, and consolidate in its preamble, which means that that it is an exclusive and exhaustive. It is exclusive and exhaustive law in itself. It is exclusive and exhaustive law in itself. However, however, the legislatures, however, the legislatures have kept, legislature has kept certain things out of the purview of, out of the purview of Evidence Act. For example, affidavits. For example, affidavits, quasi-judicial proceedings, arbitral proceeding, etc. However, however, mere these exceptions does not mere these exceptions does not affect the exhaustibility, does not affect the exhaustibility of, does not affect the exhaustibility of
द इंडियन एविडेंस, राइट। अब वो एडजेसेंट और लॉ ऑफ फॉरेन को लिखाने की जरूरत नहीं है ना, अंडरस्टैंड है, उसको लिखाने की जरूरत नहीं, प्लीज एडजेसेंट और लॉ ऑफ फॉरेन को लिखाने की जरूरत नहीं है। चलो, सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? प्लीज, एनी पर्सन इज नॉट हैविंग टू हियर माय वॉइस, एनी पर्सन हैविंग इशू विद माय वॉइस? सबका पढ़ाई तो ठीक चल रहा है ना? ऐसा सबकी शक्लें वकलें एकदम अजीब सी हो रखी हैं, एवरीबॉडी इज लुकिंग लाइक मी टायर्ड। हाउ मेनी पीपल आर टायर्ड विद द लॉकडाउन? हाँ, हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनका भी सही चल रहा है सारा कुछ? बिल्कुल, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक। और किसका, शिवानी का कैसे चल रहा है? ठीक है। निवेदिता वॉइस इज नॉट क्लियर, अच्छा ठीक है। और किसको वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज? माय वॉइस इज नॉट क्लियर टू whom anyone else is not having my voice clear? निवेदिता बेटा एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। चलो, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? कोई आसपास है जो आजकल अब्सेंट चल रहा है तुम्हारे आसपास? चलो, प्रभात है ज्वाइन, ओके गुड। चलिए भैया, अच्छे से रहो सारे लोग। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन आ गया है ना? देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, लाइफ इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बिहार आ गया है, अच्छे से तैयारी करो, हैप्पी हैप्पी रहो, खुश रहो, इट्स पार्ट एंड पार्सल। मतलब कमियां तो हर किसी के अंदर, परेशानी तो हर किसी को आती रहती है। सब लोग शायद अपने घर पहुंचे, मृदुल तो नहीं पहुंचा अभी तक शायद अपने घर। मृदुल यही है, एंड यू शुड बी देयर अब राइट नाउ। तो एग्जाम की तैयारी आ गई है, अब तो जाना भी नहीं है, ठीक है। शिवानी इज फाइन, बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैं तो शक्ल तो देखता हूँ तुम लोगों की कि तुम जिंदा हो या फिर सब निकल गए, या डमी क्रिएट कर दिया तुम लोगों ने अपना यहाँ पर मेरे पास, है ना? बलजीत इज ओके फाइन, शिवानी is there, very good. Nivedita is okay, very good. Vikas is there, very good. Preeti is there, very good. All are fit and fine. Bhupendra has come, okay. प्रभात को कमजोर हो गया है भाई, क्या हो गया तेरे को? हैं? श्रेयस इज गुड, वेरी गुड। अच्छा, विशाल भी कमजोर हो गया पहले से। पूजा, थोड़ा हल्का हाथ रख बेटा, है मेरी तरह हो रही है, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड है। ठीक है, बाकी लोग कैमरा ऑन नहीं किया अभी तक। चलो, आई कैन सी सो मेनी पीपल हैविंग सच अ वंडरफुल फेसेस, ठीक है। बस एक चीज को समझ लीजिए अच्छे से, ये फेजेस ऑफ लाइफ है, इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, परेशान नहीं होना है। अच्छा, रोल अमीन इज देयर, ओके वेरी गुड। कितने जमाने बाद देखा मैंने रोल तेरे को, आई कैन फील इट, ठीक है। तेरे को ना ही देखा तो अजीब सा लगता है यहाँ पे, अभी तो सब ठीक लग रहा है। चलो अच्छा गुड, रूल इज देयर। और कौन आ गया है बाकी लोग? अच्छा वेरी गुड, आयुषी आ गई है, कंचन आ गई है, वेरी गुड। वैदी इज देयर, वेरी गुड। तनु आ गई है, वेरी गुड। एंड वैदी तनु दोनों ही पतली हो गई है, वेरी गुड। सही है सही है सही है, वेरी गुड। बाकी कौन निवेदना ने बंद किया है? चलो मैं देख चुका निवेदना को, बाकी लोग कहाँ गए हुए? ठीक है, कितने लोगों को? और अच्छा, कोई और है? ओके, अजनी को मैं देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। सरिता, नावेद, शशांक, इन लोगों ने नहीं बोला। दीक्षा, श्रेया इज नॉट देयर, अभी तक नहीं बोला। गौरव इज नॉट ओपनिंग, अर्श खान ने नहीं बोला। ओके, हो सकता है कि इन लोगों का सिग्नल इशू हो, है ना? तुषार, रुखसार, प्रियज, चलिए। जितने लोगों ने कैमरा खोल रखा है, तुम लोगों की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना, ये बताओ? फाइन, वेरी गुड, फाइन। निवेदिता पढ़ाई शुरू करी है? निवेदिता तो थैंक गॉड। निवेदिता, अब तेरे पास कुछ बचा नहीं, टिकटॉक तो रहा नहीं अब, तो नो ऑप्शन ऑफ एनीथिंग एल्स है। अब ठीक है, तो अब तो टिकटॉक इज ओवर, पढ़ाई कर सकती है निवेदिता। देखो, और बाकी लोगों ने, वैधी पढ़ाई शुरू करी? नहीं किया, थोड़ा बहुत, ठीक है। पूजा स्टार्ट किया, आयुषी स्टार्ट किया। आयुषी, कॉलेज माइट भी ओवर, अभी तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर अभी नहीं बचा है ना तुम्हारा सेमेस्टर?
है ना, अभी आयुष्य का बचा है। वैदिक तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर था या ये बचा है? एक बचा है। ओके, प्रभात तैयारी बिहार भरा है? अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ जरा बिहार भरा नहीं भरा। तुम 3 महीने सुना दोस्तों घर घूम के आए हो, हैं? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको, जो लॉकडाउन में ऐसी जगह लॉकडाउन हुआ था कि इसको ये भी नहीं पता है कि वहाँ पे सिग्नल आते हैं। ये किस दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसका मोबाइल भी लॉकडाउन हो गया था, है ना? कोई बात नहीं बेटा। हाँ, भूपेंद्र तैयारी शुरू की है? रोल, वेरी गुड। बलजीत शुरू किया? प्रीति स्टार्ट किया है? शिवानी नहीं स्टार्ट किया? शिवानी अभी तक? बिहार आ गया है, स्टार्ट नहीं किया, बिहार नहीं भरा है? भैया बिहार भर दिया है, देखो बिहार अच्छे से करो, ये मौका मिला है। एग्जाम एक्सटेंड होगा नो डाउट। अगर आपको लगता है, किसी को लगता है एग्जाम एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो एग्जाम विल गेट एक्सटेंड, ठीक है? ये तो डन है, बट कितना एक्सटेंड होगा मैं ये नहीं बोल सकता। तो इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों का हो गया है वो अपना सारा का सारा क्लासेस करना शुरू करें। अब लॉकडाउन में देखो हर किसी के साथ अलग है। मेरे आई एम फेसिंग मोर देन व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आई एम सिटिंग इन माय फादर ऑफिस। मैं सुबह 5 बजे आ जाता हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग माय मदर्स स्कूल आल्सो, आई एम मैनेजिंग माय कोचिंग इज आल्सो, आई एम मैनेजिंग माय फादर इज नॉट वेल, तो उनका ऑफिस है, आई आल्सो मैनेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े और फैमिली इश्यूज है, वो भी मैनेज कर रहा हूँ। ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ठीक है? बट इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप किस चीज़ के लिए फोकस है टाइम पे, है ना? तो आप कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो आपको टाइम मिला है बिहार के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंपनी लॉ की बात चल रही है, मैंने बोला है आपको। एक दो और सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अगर लगता है कि वहाँ आते हैं और हमने यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, है ना, तो मुझको उसको लिस्ट मृदुल दे देगा या भूपेंद्र दे देगा या फिर तनु, कोई भी मुझे वो लिस्ट दे देगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दो उनकी क्लासेस अरेंज करा लें ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों ने मुझे मेंस के आंसर लिख के भेजे थे, उन लोगों को मैंने चेक करके भेजा, कुछ लोगों को मैं चेक करके नहीं भेज पाया हूँ, उनका मैं कल या परसों भेज दूंगा। ठीक है, कुछ लोगों का मैंने भेजा है। और कुछ लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल सरिता ने क्या किया है, उसने मेरे को सारी दुनिया भर के सारे सेमेस्टर एक साथ लिख के भेज दिए और मैंने एक आंसर चेक करके उसका रिव्यू दे दिया। जब आप, तो हमेशा आपसे बोलता हूँ कि एक या दो आंसर लिखिए, उसका जब रिव्यू मिल जाए फिर आप नए आंसर, क्यों? क्योंकि आपको वो मिस्टेक सॉल्व करनी है ना, तो आंसर चेक नहीं कराना है। आंसर चेक मैं कभी भी आपका ये नहीं देखता कि आपने उसके अंदर कितने क्वालिटी लिखा है। क्वालिटी का मैटर नहीं करता, उसका पैटर्न पकड़ता हूँ मैं पहला। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि पहले आप, सबसे पहले आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो ठीक हो जाए। जब वो राइटिंग पैटर्न ठीक हो जाता है फिर मैं कंटेंट की तरफ फोकस करने लगता हूँ। मोर ओवर, और कंटेंट खुद ही ठीक हो जाता है जब आपका राइटिंग स्टाइल ठीक हो जाता है। तो कुछ लोगों को शायद, कुछ लोगों को मिला है ना मेरा रिव्यू, कुछ लोगों को मिला है, कुछ को अभी तक नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उन्होंने मेरे को भेजा है, बट मिला नहीं है, मैं भेजूंगा। बट एक दो लोग हैं जो मेरे को प्लेंटी या जजमेंट लिख के, वो प्लेंट और डब्ल्यू एस लिख के भेज रहे हैं। तो आपको समझ के देखिए, प्लेंट और डब्ल्यू एस में नहीं चेक करूंगा अभी राइट में, है ना, वो तो आमने सामने आंसर लिख के भेजिए, उसके उसके हिसाब से मैं भेजूंगा। और जो उसके अंदर मैंने मार्क करके दिया है आपको कि ये वाला गलत है, ये गलत है, आपका ये गलत है, आप इसको इस तरीके से, उसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए और उसको, उस पार्ट को ठीक करने की कोशिश करिए। तो हर बार पूरा आंसर ठीक हो जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप धीरे धीरे वो गलतियां पकड़ लीजिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव। मैंने एक नया सोल्यूशन निकाला, अगली बार से मैगजीन में मैंने प्रिपेयर किया है। मैं हिंदी और इंग्लिश, इस अभी हम ट्रांसलेशन देते हैं, नहीं देते हैं, हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेशन नहीं होता ना मैगजीन में मेरे, बट इस बार से मैंने 2 पेज का देना शुरू किया है। तो एवरी टाइम, तो आई हैव कम अप विद अ लीगल ग्लॉसरी। इधर हिंदी फॉर एग्जांपल न्यायालय, तो कोर्ट, यातायात को क्या बोलते हैं, हलफनामा, एफिडेविट, ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं मैंने वो भी निकाला है। मैंने वो वर्ड भी क्रिएट किया कि एक तरफ उर्दू, एक तरफ जैसे माल, रुपया, कॉस्ट, उस टाइप के कोड में जो यूज होता है, तो मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उस पर भी फोकस करिए, बट आराम से करिए, हो जाएगा, पैनिक मत होइएगा। बिहार अच्छे से करिए, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐड ऑन करूँ। जो मैंने ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कराया है जो है, एक बार उसको iOS वर्जन आते ही फिर मैं उस पर एक्टिव हो जाऊँगा। जब उस पर हम एक्टिव हो जाएंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन मैंने क्रिएट किया है टेस्ट सीरीज का। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्रिएट करूँगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही देंगे पेपर, एंड टू एंड चेक हो जाएगा, एंड टू एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। मेंस का भी वैसा हो सकता है वहाँ पे, वो भी कर रहा हूँ।
ठीक है, तो वो हम करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, कोशिश हो जाएगा। लॉकडाउन है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, बट हो जाएगा। बट आप अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, अच्छे जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। चलिए, लेट अस मूव इनटू दिस part. We are done. Let us go into first part. Before getting into anything, we will try to understand. हमने कल पढ़ा था कि एक चीज को हमने फोकस किया था कल, दैट इज इंडियन अगर एविडेंस एक्ट को समझने की कोशिश करें, इंडियन एविडेंस एक्ट 3 रास्तों में घूमता है, 3 चीजों पर: फैक्ट, फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट। These are 3 things on which whole evidence act revolves. Let us go and find out what these things are. So let us go. What do you mean by facts? So first of all, let's go into the definition. What do you mean by fact? If let us go into first part. What do you mean by fact? Section 3. Indian Evidence Act Section 3 defined all these 3: fact and issue, fact and relevant fact. Section 3 of Indian Evidence Act defined all. It is a definition clause, so it defines codes, documents, evidence. वहीं पर ही it defines fact and issue, fact and relevant facts. We'll go into the definition of fact first. Can anyone tell me? Let it be a very class type feeling of this subject, because शुरू की 3 classes में बड़ा आराम से करवाना चाहता हूँ. Let it be done. So let have a class वाली feeling. Can anyone tell me what is facts? Anyone? Raise your hand. I will unmute you. चलिए. Arsh Khan. Arsh Khan. Yes. Hello. Sir, Yes. good evening. Yes. Sir, basically I will state in one line: anything which is perceived by the senses. Anything perceived by the senses, right? Right. ठीक है. Anyone else want to say? चलिए. But anything related to cause of action. Okay. देखिए, समझ के देखते हैं. डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं व्हाट डू मीन. अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, और आई वांट यू ऑल टू ओपन योर कैमरास ताकि मैं तुमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर पाऊँ. जितने लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं वो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आई कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. डेफिनेशन पार्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है. अगर फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करो, लेट अस गो एंड रीड द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द फैक्ट. ऑल पीपल गो एंड बेयर एट. Fact means and include. First of all, try to definition. Mean and include. What do you mean by this definition? एक तो ये समझ लीजिए पहला. The definition of the fact under Indian Evidence Act include, the definition is very include and means. Whenever a definition have these 2 terms, mean and include, the definition is exhaustive and inclusive. Try to understand at the same time. 2 things are there. What do you mean by the definition is exhaustive and inclusive at the same time? When I say the definition is exhaustive and inclusive at the same time, what does it mean? Does it mean, देखिए, जब भी आप कभी भी डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे तो आप कुछ चीजें देखेंगे. इफ यू सी द डेफिनेशन क्लॉज इंटरप्रिटेशन में, तो यू find that certain act has definition that A means, है ना. Certain definition include A includes data dash. Certain definition have A means and include dash dash dash. Right? जब भी लॉ में आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, आपको ये 3 तरीके की डेफिनेशन मिलेगी. एक डेफिनेशन बोल भी होगी A means dash dash dash, मतलब A means B, C, D, anything. One definition might be like this: A include A, B, C, D. A includes and means. या means and include. What is the basic difference between these definitions? पहले तो इसको समझिए. When the definition uses the word means, when the definition uses the word means, the definition is exhaustive.
जब भी डेफिनेशन शब्द के अंदर मीन वर्ड यूज किया गया, डेफिनेशन बिकम वेरी क्लियर, वेरी हार्ड, वेरी एग्जॉस्टिव. व्हेन आई से एग्जॉस्टिव, दैट इज मींस इट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, अपने आप में पूरी है. You cannot make any changes into the definition. So suppose I take an example. It is written A means B. Suppose some definition is this in which it is written A means B. अगर ये लिखा है कि A means B, that means court cannot interpret this definition into A means C also, A means D also. It will never change. Meaning is certain. तो अगर किसी लॉ में किसी डेफिनेशन को ए मीन बी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ए मीन बी ही रहेगा उस लॉ के अंदर, वो कभी सी नहीं बनेगा, कभी डी नहीं बनेगा, कभी ई नहीं बनेगा. इट्स अ वेरी क्लियर डेफिनेशन. द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है? वेरी लिमिटेड चला जाता है. द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन इज लिमिटेड इन सच डेफिनेशन टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, रादर जीरो. But when the definition uses the word A include B, if the definition says A include B, this definition means not exhaustive. When I say not exhaustive, what does it mean? It means that A include B, may include C, may include D, may include E, and so on. That is, the law of interpretation is very wide. The court can use this definition for as much as interpretation as possible and may include so many other things into the definition. जहां पर किसी भी लॉ के अंदर इंक्लूसिव वर्ड का यूज कर दिया डेफिनेशन के अंदर, वो डेफिनेशन का जज के लिए रास्ता खुल गया कि वो उसको अपने हिसाब, नॉट अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से, आई विल से ना, नॉट अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से उसकी लाइन के अंदर, लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, उसका जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस लॉ के, उसके बेसिस पे उसको इंटरप्रिटेट कर सकते. तो व्हेन दे से A include B, that means it may include C also, it may include D also, it may. एग्जाम्पल दे दिया. तो when these definition which are inclusive definition, basically they are exemplary definition. वो जो लेजिस्लेचर्स ने, उन्होंने कोर्ट को सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया है ताकि वो उसको इंटरप्रिटेट कर सके फ्यूचर में. When A means and include, ये दो वर्ड यूज किया है, तब क्या है? सपोज A is written A means B and include. What does it mean? It means that court interpretation is there. Court can interpret this definition. There is a law of interpretation. But when it comes to the interpretation of A is equal to B, the court have no authority. तो एक तो जो दे दी डेफिनेशन वो परमानेंट है, समझ के देखना. तो बोलते हैं अगर इस टाइप की डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव तो है, अपने आप में एग्जॉस्टिव है. मतलब क्या है? व्हाट इज गिवन इज फिक्स्ड. कोर्ट कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन. तो अगर लिखा हुआ A इज इक्वल टू B, तो वो A इज इक्वल टू B तो मानेगी ही मानेगी हर बार, बट सिर्फ B ही मानेगी वो पॉसिबल नहीं है. इट में ऐड फ्यू थिंग्स आल्सो, बट उसके लिए कभी B को रिड्यूस नहीं करेगी. इंक्लूसिव से डिफरेंस कहाँ जाता है? इंक्लूसिव में A इज इक्वल A इंक्लूड B दे दिया, तो कोर्ट चाहे तो B को इंक्लूड करे ना करे, वो C को इंक्लूड कर ले, वो D को इंक्लूड कर ले, वो E को इंक्लूड कर ले, उसकी इंक्लूसिव पावर बढ़ गई है. बट यहाँ पर A मीन्स B, B तो रहेगा ही रहेगा, B कभी नहीं जाएगा, प्लस और चीजें ऐड कर सकते. Similarly, section 3 defines fact and it uses the definition means and include. जब डेफिनेशन में मीन और इंक्लूड आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो तो फिक्स है, दैट इज अ फैक्ट. बट उसके अलावा फैक्ट कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स. तो फैक्ट को जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन एक्सक्लूसिव प्लस इंक्लूसिव है, both exhaustive and inclusive definition. So if you see, section 3 uses the phrase the facts means and include. When they say fact means and include, that means जो हम अब define करने वाले हैं, what we are defining under section 3, that is fact. But that does not mean that that is only fact. It may include so many other things also. So
interpretation has been left into the hands of the court, right? So we will go into the meaning वाला part obviously, not into the interpretation part, but जो हम पढ़ने वाले सिर्फ वही फैक्ट है ऐसा नहीं, ठीक है, बट बेसिक्स बता दिया. So it's an inclusive definition. Court will add into the definitions of facts so more, but what is defined by legislature वो पढ़ते हैं, ठीक है. और डेफिनेशन ही खुद अपने आप में बहुत ब्रॉड है, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन. If I read the definition, let us go into the definition. Fact means and include. This is fact means. Sorry. Fact means and includes. First, this is देखिए, facts means and includes anything. Then this is comma use करते हैं. This is state of thing. I am breaking the law. कल बताया था ना, इसको break करके पढ़ेंगे. You will study it, you will break it as much as possible. State of thing. Then it says or relation of things. ठीक. And what this? All these capable to perceive by senses. This is the first definition part. Try to understand. This says fact is anything. What do you mean by anything? What do you mean by anything? तो बोलते हैं fact is anything capable of perceived by senses. What they are saying anything to समझ रहे हो ना, मेरा ब्रेकडाउन समझ रहे हो, इस ब्रेकडाउन को नीचे लिखते हुआ आ रहा हूँ. इस ब्रेकडाउन जो मैंने ऊपर किया उसको मैं अब डिफरेंशिएटली नीचे लिखा हूँ. Anything capable of being perceived by senses. What do you mean by anything? This is anything. What is anything? Can anyone tell me anything? What is anything? कोई बताएगा मेरे को? कोई भी एक इंडिविजुअल बताना चाहे मुझको. What is anything? A. चश्मा is anything. तुम्हारा हेडफोन is anything. You watching me is anything. Chair you are sitting is the chair, है ना. Books, shop, pen, headphone, your fan, है ना. You watching me, watching, you're talking, all is fact. Your AC, curtain behind you, mirror behind you, ठीक है, you talking to me, wall behind me, anything. This is anything. Anything can be a fact. So it can be anything which can be perceived by senses. When I say perceived by senses, what do you mean by it? How many senses we have? 5 senses, ना. I देख सकता हूँ, मैं उसको सुन सकता हूँ, मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, मैं उसको फील कर सकता हूँ. वो हर चीज जिसको मैंने थप्पड़ मारा, फॉर एग्जांपल पूजा अपने गाल पे थप्पड़ मारा जोर से, यू विल फील द पेन, है ना. दिस इज व्हाट, दिस इज एनीथिंग, दिस इज अ फैक्ट, है ना. मैंने कुछ बोला, तुमने सुनाई दिया, दिस इज एनीथिंग, दिस इज आल्सो अ फैक्ट. तो हर चीज फैक्ट है. पहली बात, फैक्ट का किसी भी तरीके से कॉज ऑफ एक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है. मेरे को फैक्ट का कॉज ऑफ एक्शन से कोई कनेक्शन ही नहीं है. फैक्ट एक यूनिवर्स में फ्लो करता हुआ चीज है जिसको आप फील कर सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप सेंसेस, जो आपके सेंसेस से डिलीवर हो सकता है.
ठीक है, दैट इज नोन एज फैक्ट। अभी के लिए एक पहले डेफिनेशन, ऑब्वियसली डेफिनेशन इज वेरी एग्जॉस्टिव। द वर्ड एनीथिंग का मीनिंग बता सकता हूँ। हाँ, कोरोना इज एनीथिंग, एनीथिंग, कोरोना इज ऑल्सो एनीथिंग। ठीक है, बट कोरोना के लिए मैं अभी उसको एनीथिंग में नहीं डालूंगा बिकॉज दिखता नहीं है। एनीवन हैव सीन कोरोना? एनीवन हैव स्मेल्ड कोरोना? डू यू हैव ईटन कोरोना? डू यू हैव टेस्टेड कोरोना? नहीं नहीं नहीं, try to understand anything which can be perceived by senses. corona cannot be perceived by senses, कुछ और हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फैक्ट नहीं है, बट इस डेफिनेशन में नहीं है कोरोना, है ना अर्शुल्ला खान साहब? ठीक है, तो perceived by senses का मतलब क्या है? anything which can be physically seen basically, अगर देखा जाए हम उसको एंड में पढ़ेंगे भी। ठीक है, एग्जैक्टली, उससे तो सेंस ही चली जाती है। ठीक है, उससे तो नॉनसेंस हो जाता है। ठीक है, नो सेंसेस। तो एनीथिंग का मतलब समझ में आया प्लीज? एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस, तो एनीथिंग इज अ फैक्ट। इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं हम, फैक्ट की पहली डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, उसका पहला पार्ट पढ़े और पहले पार्ट में हमने समझा कि एनीथिंग इज अ फैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एनीथिंग? कोई भी चीज जो आप देख सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, वो है। दूसरा बोलते हैं समथिंग, सेकेंड पार्ट, दिस इज दैट इज स्टेट ऑफ थिंग, है ना? स्टेट ऑफ थिंग perceived by senses, है ना? तो स्टेट ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग, दो मैं वर्ड कैपेबल यूज नहीं कर रहा हूँ, वो ऊपर यूज कर लिया इसलिए। स्टेट ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, this is the second stage, this is also fact. What do you mean by state of thing? मैं समझाता हूँ। What do you mean by state of thing? कोई बताएगा मुझे स्टेट ऑफ थिंग? कोई भी एक आदमी बता सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ थिंग? क्या होता है, क्या स्टेट ऑफ थिंग? फिजिकल स्टेट, any particular form, exactly, or physical state, which state, which things, solid, liquid, gas, okay। देखिए, स्टेट ऑफ थिंग होता है, समझ के देखिएगा, समथिंग which occur in a normal manner, regular occurrences। What do you mean by regular occurrence? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। It is not mental condition, it is not anything, regular occurrence are not a state of thing। What do you mean? that is state of thing का समझाने की कोशिश। For example, ये क्या है? Can anyone tell me what is this? Can anyone tell me what is this? चल बता तनु, ये क्या है? अर्जुनी बता क्या है? उपेंद्र, कोई तो बता दो क्या है? अब बताइए क्या है? कुछ लोगों का आंसर आ गया मेरे पास कि क्या है। लेट मी सी। ठीक है, पूल, बॉक्स, स्टेयर। चलिए अब बताइए क्या है? Can anyone tell me? It's a bookshelf, है ना? It's a bookshelf. Very good, Shreya, very good. ठीक है, it's a Mansi, very good. ठीक है, it's a bookshelf. Try to understand. We know कि in bookshelf books are kept in a particular manner, and out of that particular manner, one book is out of that manner. That is something which is out of the regular phenomena. It can directly be sensed by you or not. Yes, one book is falling. This is what? This is the state of thing. State of thing. That is something which is regular, something which is very normal, but happens abnormally. This is not a state of thing.
ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, स्टेट ऑफ थिंग को समझने की कोशिश करते हैं. समझाता हूँ. पूजा बताओ क्या है. क्या है ये? तो बताएगा. अरे रसोई में खाना बन रहा है आजकल, मैं वही तो फोकस कर रहा हूँ. है ना. अरे रसोई में खाना बन रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बॉयल हो रहा है, देख रहे हो. अच्छा ऑर्डर इससे अच्छा ड्राइंग क्या बना सकते हो यार? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप इसको देख रहे हो और मैंने जैसे बोला रसोई में खाना है, इसको देखते ही सबने क्या महसूस देखा कि अच्छा कुछ बन रहा है. हाँ है ना. देयर इज समथिंग which is being put upon the lead and it is burning. What is this? This is a state of thing. और इसके साथ में ये जो चीजें रखी है वो क्या है? या तो ये कोई बॉक्सेस रखे हैं जिसमें चाय चीनी पत्ती रखी है या कुछ और. हाँ है ना. दिस इज नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ पोजिशंस, स्टेट ऑफ अ थिंग इन अ पर्टिकुलर पोजिशन. रसोई में यही होता है. और सपोज इनमें से एक बर्तन ऐसे गिरा हुआ है, इसको देखते ही आपको क्या लग जाएगा? It has lose its natural state of mind or not, state of thing or not, its position or not. इसे गिरा दिया, इसको स्पिन किया है ना. This is known as a state of thing. तो बोलते हैं ऐसी चीजें जो रेगुलर होती है, जो रेगुलर फिनोमिना है, जो रेगुलर अक्रेंसेस हैं, उन और वो आपके माइंड से परसीव हो जा सकती हैं, वो फैक्ट्स है. फॉर एग्जांपल ऑफिस में चेयर रखी होती है, रेगुलर है. आपकी क्लास में चेयर्स आगे पीछे लगी होती है, एक साइड में एक रो में 4 चेयर होती है, रेगुलर है ना. आप जाएंगे, आपके जाने से पहले मनोज भैया वॉशरूम साफ करेंगे, रेगुलर स्टेट ऑफ थिंग है. बट एक दिन आप गए और वो साफ नहीं है, क्या हो गया? यू अंडरस्टैंड. वो जो नॉर्मल फिनोमेना था उसको फॉलो नहीं किया गया. तुरंत देखते आप समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा नहीं नहीं. तो आप अपने घर में रोज आते हैं और आपको पता है खिड़की बंद रहती है, आप आते हैं अचानक से एक दिन खुली थी, तुरंत आते हैं आप समझ जाएंगे अच्छा somebody has used my room. राइट और रॉन्ग, दिस हैपेंस और नॉट. आप अपने घर में कोई चीज एक जगह रखते हैं या अपनी बुक शेल्फ में एक जगह रखते हैं, वो आपको पता है, और अगर वो वहां से हल्की सी भी हिलती है तो यू गेट नोटिस्ड, मेरी इस चीज को किसने छुआ था. व्हाट इज दिस? द स्टेट ऑफ थिंग हैज चेंज्ड, पोजीशन ऑफ द थिंग हैज चेंज्ड. क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली आपको पता है ऐसे बिहेव करती है और अचानक से ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है. तो बोलते हैं एनीथिंग विच इज ऑफ अ रेगुलर अक्रेंस एंड दैट इज बीइंग परसीव्ड बाय योर माइंड इज बिकम फैक्ट. The bookshelf is being perceived by mind. Boiling milk is being perceived by mind. This is a state of thing. बर्तन चढ़ा है, भगोना चढ़ा हुआ है, तो मम्मी दूर से भी आप खड़े हो गए तो एक पर्टिकुलर भगोना होगा, उसको उसको मम्मा जब भी चढ़ाती होंगी तो आपको पता है उसके दूध बन रहा है. दिस इज व्हाट नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड. बट एक दिन आप गए तो पता चला दूध की जगह मम्मी तुम्हारे लिए जहर उबाल रही है. बहुत हो गया लॉकडाउन में, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, आप तुम्हें आज जहर दूंगी मारूंगी. ठीक है. व्हाट हैपेंड? यू ऑलवेज तुरंत पहचान जाओगे अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी, गलत होने वाला है मेरे साथ. ठीक है. तो आपको नॉर्मल पता है कि मम्मी जब आती है मजाक में तो ऐसे ठंडा या ऐसे चप्पल लेके आती है तो मजाक कर रही है. तो अचानक से सिचुएशन चेंज हो गया, आपको देखते पहचान जाएंगे नहीं ये वाली चप्पल जो है ये तो सीरियस आने वाली है ना. इट हैपेंस और नॉट. दिस इज स्टेट ऑफ थिंग. दिस इज ऑल स्टेट ऑफ थिंग. योर माइंड कैन परसीव इट, योर माइंड कैन सी इट, योर माइंड कैन वॉच इट. तुम अपने घर में एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, एक फिक्स पोजीशन होती है उसकी, वहां रखा है, और जैसे ही वहां से हिलता है इट्स ऑलवेज हंगामा. रिमोट यहाँ रखा रहता है, दिमाग खराब हो गया है कि क्यों हिला दिया है, समझ में नहीं आता है, लोग पागल हो. इट हैपेंस एवरी इन एवरी हाउस. आई थिंक कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें स्पेशली व्हेन मॉम डू दिस टू यू, क्योंकि तुम हिलाते हो और मॉम को लगता है कि हाँ, वो खुद भी लाती तब भी लगता है कि तुमने हिलाया. ठीक है. और इट ऑलवेज हैपेंस. खुद भी रख के भूल जाती तब भी बोलेंगे तुम लोग इन बच्चों ने दिमाग खराब किया. It happens, but this is all state of thing. This is all state of thing, and this is all fact. This is all fact. तो सबको पता है कि मैं सुबह 7 बजे से यहाँ तक जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से इस प्रोसेस आता हूँ. दिस इज स्टेट ऑफ थिंग.
all is a state of thing and all is a fact. तो एनीथिंग इज अ फैक्ट. तो कोई चीज पढ़ी है, तुमने देख ली, फैक्ट. कोई चीज रोज पड़ी रहती है और आज नहीं पड़ी है, इट इज ऑल्सो फैक्ट, बिकॉज स्टेट ऑफ थिंग थी, चेंज हो गई. तो एक पेड़ खड़ा था, अचानक से रोड पे कट गया एक दिन. खड़ा था रोज, उसका खड़ा होना, रोज दिखना इज अ स्टेट ऑफ थिंग, बिकॉज आपने उसे लगातार खड़े हुए देखा है. अचानक से आपको कट गया, तो आपको ये भी पता चल गया कि अच्छा नाउ इट हैज बीन कट डाउन, बिकॉज इट्स अ स्टेट ऑफ थिंग, चेंज इन द स्टेट ऑफ. This is fact means and include anything, state of thing, and last is third is a relation of thing. Perceived by senses. When I say perceived by senses, capable to perceive by senses. ठीक है. What do you mean by relation? This is another. Relation of thing का मतलब है, it is to show some connections. To show connection. When I say show connection, बड़ा एक prominent example होता है. तो हर बार मैं ये example लेता हूँ because this is one of my favorite examples. Let us speak it again. अच्छा से बनाऊंगा. I will make it very सुंदर. तो I try always, पिछले 3 साल से I try, 3 साल से पहले से I try to make it सुंदर. एक ही example, believe me. I normally do not repeat my examples, but this is the example which I love, created by me only. But still I cannot make it as fine as can be. But आप बता सकते हैं क्या रखा है? What is this? बताओ. It's a glass, है ना? उल्टा ग्लास रखा है. मेरा नहीं रखा उल्टा ग्लास. सबको बाल्टी लग रहा है. ओके चलो, इट्स उल्टा ग्लास बिकॉज इट्स अ टेबल. अब तो ठीक है ना, इट्स अ टेबल. अब ठीक है, टेबल तो ठीक है, टेबल आई हैव मेड अ गुड टेबल एस आई थिंक. देयर इज what is this? What is this? Can anyone tell me? This is also glass having a sign of lip paint. Ayana, what does this shows? Can anyone tell me what this shows? The lip paint upon the glass shows what? That this glass is being used by some woman for drinking. Ayana, right or wrong? This is the relation of a thing. This glass have a relation with a woman when it comes to a drinking. This is known as relation of a thing. That is fact. This is a fact. This is a fact. When some particular thing create a relation. ग्लास का सीधा देखना. अब इसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करूंगा मैं, इसी के अंदर तीनों चीजें भी डालूंगा, वी डोंट वरी अबाउट इट. बट एक सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप को समझ में आया प्लीज. कनेक्शंस क्रिएट करना किसी का. तो ग्लास के ऊपर लिप बाम का होना या लिप पेंट का होना, इट्स अ लिप पेंट. नाउ लिपस्टिक इज ओल्ड वर्जन, इट इज यूज्ड एज लिप पेंट. ठीक है, तो वुमेन नाउ डू नॉट यूज द वर्ड लिपस्टिक. अर्लियर माय मदर टाइप इज यूज्ड टू कॉल इट लिपस्टिक. नाउ इट्स अ लिप पेंट, है ना? ऐसे ही होता है. आई एम वेरी मच एक्टिव इन टू ऑल दिस. मुझे सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है. ऐसे लाइक पहले नेल पॉलिश हुआ करती थी, नाउ इट्स अ नेल पेंट ना. तो समझ के देखिएगा, इस क्लास को देखते ही एक चीज क्लियर हो गया कि सम वुमेन हैज यूज्ड दिस क्लास. ठीक है, either for drinking or something else, but they have used it. This shows what? This shows the connection of glass with a woman. This shows, this create a relationship of that glass to a woman, and this is also a fact. है ना? अब इन सारी चीजों को एक जगह रखते हैं और एक एग्जांपल सेट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या फैक्ट है.
लेट इट बी अ क्राइम सीन, लेट अस क्रिएट अ क्राइम सीन, बट हम इसके अंदर फैक्ट एंड इशू, रेलिवेंट फैक्ट अभी भी नहीं एंटर करने वाले हैं। वी विल ओनली स्टडी फैक्ट्स, ठीक है। तो डू नॉट मेक इट अ क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेटिंग सीन नहीं बनाना है, जस्ट सिंपल क्राइम सीन। जिमोमो ऐड नहीं हो पा रही है प्लीज, बट उसका मेरे को ऑफर नहीं आ रहा है यहाँ पे बेटा, अगर आता तो मैं पक्का उसको ऐड करता, बट लेट मी सी अगेन। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग हिज हर एनी इनविटेशन और एक्सेप्टेशन का जो भी है, उसका कोई रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर उसका रिक्वेस्ट आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो निवेदिता उसको बोलो, मैथ्यू को, कि मैं आई एम नॉट गेटिंग एनी रिक्वेस्ट, ठीक। बट चलिए एक क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने गेम खेला है कभी क्राइम सीन? एंड दिस इज वेरी फेमस गेम ऑन एंड्रॉइड। मुझे नहीं पता आपने खेला नहीं खेला, बट आई हैव प्लेड टिल 250 स्टेज। नहीं खेल रहा, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बोलता हूँ ना मेरे को समझा करो बात, मैं बहुत चालू, मुझे सब पता होता है ना। तो बताएगा व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल व्हाट इज दिस? दिस इज सोफा ओवरव्यू, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द अप साइड, ऊपर से व्यू ले रहा हूँ। इट्स सोफा। मुझे क्यों टेंशन ले रही है, ऐसे तो उठाओ तो। सोफास आर लाइक दिस, है ना, इट्स सोफास। व्हाट इज दिस? सेंट्रल टेबल, है ना। सो ओवरव्यू, ऊपर से ले रहा हूँ सारा व्यू, इन्वेस्टिगेटिंग सीन है ना। देयर आर ग्लास, let it be different color. Matthew again. Now I got it. कोई बात नहीं, मैं ड्राइंग ठीक कर रहा हूँ अपनी मृदुल, आई एम ट्राइंग टू मेक इट गुड, बट हो नहीं रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। these are glasses, सीधा स्ट्रेट। दिस इज ऑब्वियस है, आपको समझ में आ गया क्या है ना, लिपस्टिक का निशान, है ना। दिस इज व्हाट, डेड बॉडी है, दिस इज अ डेड बॉडी, इट्स अ क्राइम सीन, ठीक है। कोई बात नहीं मैथ्यू, अच्छा हुआ, है ना, तुम लेट आई हो तो अच्छा लगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई लेट आया तो मैथ्यू बोल रही मैं लेट आई हूँ, मैं टाइम भूल गई थी। कोई बात नहीं, बस कुछ दिन बाद मुझे मत भूल जाना, क्योंकि मैं तेरे को भूल गया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस होल क्राइम सीन विच यू सी, दिस इज एनीथिंग, दिस इज एनीथिंग, द होल क्राइम सीन इज अ anything, it's a fact, right? Whole crime scene is a fact. These sofas and the center table and the straight glasses, four glasses, is what? These are a state of thing. Sofa, glasses, table, dead body, etc. These all are states of thing. समझ आ रहा है? आया ना? Because वो हमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन समझा रही है। Up now, in out of these four glasses, all glasses are straight. नॉर्मली टेबल पे कैसे ग्लास रखे होते हैं? उल्टे करके। You see, अगर it is not being used, उल्टा ग्लास रखा होता है, but they are being used, तो सीधा होगा, ठीक है। Glasses state shows they are used, right? अब suppose इन glasses के अंदर there is a wine in the glasses, wine in glass,
This is what this shows the relationship of glass with the wine, that there are four peoples. देखना, try to understand relationship create कर रहा हूं मैं. 4 ग्लास रखे, सीधे रखे, वाइन है. There is two relationship will exist, that there were 4 people who have drink wine. हाँ या ना? That there were 4 people. Had wine, and out of these 4 people, what? One was woman. Out of these people, 4, one was woman. This is all is fact. This is all can be perceived by the senses. इसे दिमाग थोड़ी लगा है, सारा का सारा सेंसेस आइज ने बता दिया ना सारी चीजें कि भैया 4 सोफे लगे हुए हैं, सोफे दिख रहे हैं, तो ऊपर से 4 लोग बैठे थे, सोफे के पीछे मीटिंग हुई है, ठीक है. 4 लोगों ने ग्लास पिया है, उसमें वाइन पिया है, उस वाइन में से एक लेडी है, उसमें से एक मरा हुआ कौन है अभी अब तक हमको नहीं पता, बट ये सारी चीजें फैक्ट्स है. हम इसके फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट में देखेंगे. ऑल दिस इज फैक्ट. ठीक है, तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग समझ में आया नहीं आया? तो कल याद है मैंने जब दांत वाला एग्जांपल दिया था, उसमें सोने का जो दांत था, दैट इज अ रिलेशन ऑफ अ थिंग, दैट इज अ फैक्ट, इट क्रिएट द रिलेशन विद द इंडिविजुअल. तो वो सारे तथ्य, ठीक है, जो देखे जा सकते हैं जनरली, जिनका तरीका, तौर तरीका समझा जा सकता है वो, और जो संबंध क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपके दिमाग के द्वारा किसी से भी XYZ किसी से भी, वो सारी की सारी बातें क्या कहला जाएंगी? वो सारी की सारी चीजें तथ्य कहला जाएंगे, फैक्ट कहलाएंगे. ऑल आर फैक्ट्स. अब समझने देखा. तो दे यूजेस एनीथिंग का मतलब समझ में आया? कितनों को समझ में आया? एनीथिंग क्लियर है? एनी पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनीथिंग. स्टेट ऑफ थिंग क्लियर है, और रिलेशन ऑफ थिंग क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता प्लीज. इन तीनों के साथ इन्होंने यूज किया है परसीव्ड बाय सेंसेस. They have used that perceived by senses. What do you mean by perceived by senses? Perceived by senses का मतलब है physical facts. Physical facts. यानी कि physical senses. Physical senses. When I say physical facts or physical senses, what does that mean? That para 1 of the definition of fact, they defined physical facts. So basically, the first part of the definition defined physical facts because it is talking about perceived by senses. तो अगर fact की first part को जो मैंने define किया, that is known as physical facts. That means those facts which can be perceived by the senses. Let it go into the second definition. That is known as mental facts. Or psychological facts. Mental fact or psychological facts. So facts can be of two types, physical and mental. Physical facts को हमने समझ लिया, mental facts को हम समझेंगे, psychological facts को हम समझेंगे. Physical facts can be defined, can be understood in three manner. There is anything, state of thing, or relation of thing. Can be perceived by senses. When they uses the word perceived by senses, they mean to say that they are talking about physical facts. Let us go into the second part, psychological. आ रहा है बस समझ में? कितने को समझ में आ रहा है? कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? प्लीज 2 या 3 दिन मुझे चाहिए कि इसको क्लियर, तो उसके बाद तो मैं उड़ा दूंगा, पता तो है मेरा, बट ये 3 दिन फैक्ट एंड इश्योर रेलेवेंट फैक्ट को समझो. अगर हम इसको समझ गए तो सब पूरा एविडेंस समझ. कितने लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्ट फर्स्ट टाइम, वो फिजिकल फैक्ट फर्स्ट टाइम समझ में आया?
ये तो सबको पता होगा, फैक्ट्स कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, बट व्हाट अमाउंट टू फिजिकल फैक्ट्स समझ में आया, है ना? तो आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी स्मेल कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो फैक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में उसे फैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आपके सेंसेस से आ रहा है। तो आपके फिजिकल सेंसेस से जो भी आ रहा है वो फैक्ट है। मैंने अभी तक केस की बात ही नहीं की। मैं जान रहा हूँ बहुत सारों को दिमाग में आ रहा है कि मतलब इसका मतलब कि सर हर बार मुकदमे में वी आर नॉट गोइंग इनटू नाउ, अभी राइट नाउ वी आर नॉट इनटू द लिटिगेशन वर्ल्ड। अभी हम सिर्फ एविडेंस को समझ रहे हैं। फैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो रेलिवेंट और फैक्ट इशू नहीं बन जाता है, बट हमें पहले फैक्ट को देखना है जनरल। तो मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ उसकी एविडेंस एक्ट में क्या वैल्यू, बात को समझो। लेट अस गो द सेकंड पार्ट, सेकंड डेफिनेशन, है ना? Fact means and a truth this is fact means and truth any mental condition of which any person is conscious, of which man is conscious about. This is very important. Basically, this is known as physical or psychological fact or mental fact. Mental or psychological. This is known as mental or psychological fact. But important is this conscious. So physical facts are those facts which can be perceived by senses, whereas mental facts are those facts for which we are conscious about. Try to understand what do you mean by conscious about. So all facts are not. All facts are not mental facts. Only those facts which are we conscious about. What do you mean by conscious? What do you mean by conscious? Can anyone tell me what do you mean by conscious? It is aware about. It's about active mind. Having knowledge. The case of knowledge. अब समझने की कोशिश करते हैं. Case of knowledge or active. मुझे लगा कि मुझे श्रेया ने और पूजा ने बहुत गालियां बकी। सुबह से मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, बताइए इज इट अ फैक्ट? इज इट अ फैक्ट? इज इट अ फैक्ट? नो नो, दिस इज माई सबकॉन्शियस, समथिंग बाई सबकॉन्शियस। मेरे सबकॉन्शियस से आ रहा है। ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई बात हुई नहीं कभी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियस? आपका माइंड इस तरीके से ट्रेंड है कि आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में सबने दूध एक बार मुंह जलाया है। हाउ मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने सबने दूध पीते वक्त मुंह जलाया? मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो नहीं किया है ऐसा। अगर वो किया है तो उसने कभी दूध पिया ही नहीं, है ना? तो इट्स वेरी नॉर्मल। गर्म चाय या दूध से एक बार मुंह तो जला है ना? एंड दैट इज द रीजन आप हर बार चाय को पहली बार फूंक के पीते, बिकॉज योर माइंड हैज गॉट ट्रेन्ड कि ये गर्म होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल कैपेसिटी? ऐसा कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल इज कॉन्शियस अबाउट, इंडिविजुअल इज एक्टिव अबाउट, and he act into that activeness is known as my conscious state of mind. For example, अब तनु ने डिसाइड किया कि वो मेरा मर्डर करेगी। वो चाकू लेके आ रही है मेरे पास, मैंने उसको चाकू लाते हुए देख भी लिया और मैं मन में सोच भी रहा हूं कि वो मुझे ही मारने आ रही है, still it is not a fact because still my mind is not trained, I am only subconsciously thinking about it. but अचानक से उसने मेरे पर हमला कर दिया। जैसे ही उसने मेरा हमला किया, now my mind become conscious, now it's conscious, now it has experienced कि नहीं नहीं नहीं, this is attacking me, now I have acted, और अब जो मैंने एक्ट किया that is my fact. तो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, नॉट सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ। पीछे वाले दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं है, आगे वाले दिमाग में, ठीक है? वहां से क्या आवाज आ रही है,
वो आपका फिजिकल मेंटल फैक्ट। तो इट इज कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। और हाउ इट बिकम एक्टिव? ऑब्वियस है, ड्यू टू सम एक्सपीरियंस either past or present। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम साथ में नहीं बैठे, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यूं किया तुम्हारे, आई डन दिस। अगर तुम मेरे सामने बैठे होते तो तुम्हारी आई ब्लिंक करती, है ना? दिस इज योर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज योर एक्शन, योर रिएक्शन टुवर्ड्स माई एक्शन, दिस इज अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। बट सपोज मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो तुम बार बार हर बार में यूं यूं आंख ब्लिंक कर रहे हो, अच्छा अभी मेरे को मारेंगे तो एकदम तुम, दिस इज व्हाट यू आर एक्टिंग सबकॉन्शियसली। ठीक है, तो मैंने ऐसे वैसे कर रहा हूँ बस ऐसे ऐसे, और तुम हर बार एकदम जैसे मैंने यूं किया, अच्छा मेरी तरफ मारेंगे, तुमने अपनी आंख ब्लिंक कर दी, फिर कर दिया, नहीं, दिस इज सबकॉन्शियस स्टेट। तो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्टिवली। तो अगर आप कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर सडनली आपके माइंड में कुछ पता चलता है, कुछ एक्टिवनेस आती है और फिर आप रिएक्ट करते हो, वो एक्टिवनेस ऑफ माइंड जो है वो भी फैक्ट है। तो देख, एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड इज अ फैक्ट। देखिए मेंटल फैक्ट को समझिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल फैक्ट? ओनली दोस फैक्ट्स which are done in active state of mind are facts। ठीक है, तो मुझको सपने में लगा कि मेरी बीवी सांप है और मैंने काट के फेंक दिया उसको, दिस इज नॉट फैक्ट। ठीक है, बट पता चला वो कलर्स टीवी की नागिन निकली, है ना, और वो सच में अपना रूप बदल रही थी मेरे सामने और मैंने काट दिया, दिस इज फैक्ट बिकॉज आई एम एक्टिंग इन माई स्टेट, है ना। कलर टीवी आता है ना नागिन, अभी आजकल आता है क्या पता नहीं, अब तो टीवी आता है आजकल, कलर्स टीवी वगैरह पे चलते हैं, न्यूज प्रोग्राम्स आर नॉट रनिंग ना, ऑल हैज गॉन, दिस इज एक्टिव स्टेट ऑफ, तो इंडियन एविडेंस एक्ट ने फैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है डेफिनेशन में, फिजिकल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट। ठीक है, मेंटल फैक्ट मींस कॉन्शियस स्टेट ऑफ एक्टिव फैक्ट्स। ये जो डेफिनेशन है ना, फैक्ट्स इनटू फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट, दिस डेफिनेशन जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखे, टेकन फ्रॉम बेंथम। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो डेफिनेशन हम देखते हैं, that has been taken from Bentham. Bentham was the person who has firstly divided the facts into physical facts or mental facts. So as per Indian Evidence Act की primary definition, ठीक है, is known as facts। चलिए, किसी ने मुझे अर्श ने मुझे मैसेज किया, एक बार टाइम रख दीजिए कि मॉर्निंग या इवनिंग, बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, मैं तेरे को कैसे, बट फॉर द टाइमिंग इट्स इन द इवनिंग राइट नाउ, और अभी अगले 10 दिन तक इवनिंग रहेगा। ठीक है, और टाइम शेड्यूल एक्चुअली मैं सुबह भी सोचा था कि आई विल बी गिविंग यू अ रिकॉर्डेड वीडियो, बट ये जो टॉपिक है मैं इसको रिकॉर्डेड वीडियो से देना ही नहीं चाहता, बिकॉज दिस इज समथिंग विच नीड डायरेक्ट इंट्रैक्शंस। तो इसलिए मैंने इसको इवनिंग में रखा, ताकि, और मुझे नहीं लगता इस समय शाम को 6 बजे, तो मुझे नहीं लगता किसी को कॉलेज ऑफिस क्लासेस किसी की भी प्रॉब्लम हो, सिवाय इस बात की प्रॉब्लम कि आपको 6 बजे घूमना है, अपने गर्लफ्रेंड को टाइम दिया हुआ है, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दिया हुआ है, आपको सोना है, आपको खाना है। ठीक है, एनी सच टाइप ऑफ इंडल्जेंस कैन बी देयर, बट कोर्ट का काम नहीं है इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है 6 बजे के टाइम पे, मतलब हो सकता है दिन में काम हो, बट शाम को 6 बजे। सोने का मुझे लगता नहीं, जिम आप में से कोई करता नहीं, किसी की बॉडी बॉडी तो है नहीं मेरे जितनी। ठीक है, एक तुषार प्रभात और मैं 3 ही लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको मुझे लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, वरना लोगों लोगों जैसे लोग तो, ठीक है, तुषार प्रभात के हाथ छोड़ दूंगा किसी दिन दोनों को। ठीक है, और कॉलेजेस वाले जितने भी हैं उनको भी मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज वो भी ठीक है, निवेदित तो हो सकती है, बिकॉज वो मेरी तरह जिम करती है, शाम को जाती है बेचारी, वो मेरे साथ मेरी तरह मैनेज कर लेगी, बट मैं नहीं जा रहा हूँ आज। चलिए, दिस डेफिनेशन इज बीइंग गिवन, बट अभी फॉर नेक्स्ट 10 days टाइमिंग इज 6 ओनली। ठीक है, 6 से चलेगा।
जिमेमोस का मैसेज पढ़ लीजिए, सभी को लिखा है सोसाइटी सील हो गई है तो उसको कोई इशू नहीं है, कहती है ठीक है किसी भी टाइम पे चलेगा बिकॉज अब उसे घर में रहना है। हाँ दिस इज गुड। कितने लोगों की सोसाइटी सील हो गई है हमारे? अच्छा वेरी गुड। हमारे साइड पे यूपी में इज सच अ वंडरफुल सिचुएशन। हमारे यहाँ पे यूपी में साफ बोल रखा है नो टेस्ट नो प्रॉब्लम। मेरी तहसील के अंदर तहसीलदार और एसडीएम बोलता है like there was two people who were feeling as if they are into corona and everything। वो उसके घर जाता है उसको बोलते हैं चुपचाप घर के अंदर बैठो, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई कोरोना वोरोना नहीं हो रहा, कोई नहीं मर रहा, फालतू हमारी तहसील का काम कर नाम खराब कर रहे हो। उनमें से एक की डेथ हो गई है, ठीक है, और जब डेथ हो गई तो चुपचाप दफना दिया, जाके डराया उसको। एसडीएम बोलता है उसको कि अगर अभी तुम्हारे को लाश बताएंगे कोरोना जाएगा तो तुमको इसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, तुम बताओ क्या करना है। तो बोलता नहीं नहीं सर हमको तो खत्म कर, इट्स सो फाइन। तो यूपी में यू वांट फाइन कोरोना, ठीक है, इट्स सच अ वंडरफुल। दिल्ली वाले पागल है फालतू की चेकअप करा रहे हैं। एंड वी इंडिया इज सो प्रोग्रेसिव, वी आर ऑन थर्ड पोजीशन राइट नाउ, है ना, दे विल बी मूविंग। तो हमारा देश में कितना सिस्टम, 100 में हम पूरा बंद थे, है ना, 6 लाख पे हम पूरा ओपन है, 10 लाख पे तो हम कहेंगे कि भैया बाहर निकलो, कहाँ है कोरोना, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, हम ढूंढ ढूंढ के कोरोना के पेशेंट से चिपकेंगे जाके, ठीक है, तो हम ढूंढेंगे गलियों में जाके कहाँ है कोरोना का पेशेंट, हम विल हग हम कि देखो इंडियन, वी आर इंडियंस, वी आर लाइक डिफरेंट पर्सन। और इन सब से बचने के लिए चाइना इशू तो है ना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट्स गोइंग गुड, हमारे यहाँ तो सही चल रहा है, नो टेंशन, बट आई एम नॉट डूइंग इट। मैं नहीं निकलता बाहर, डोंट वरी, मैं अपने आप को बांध करके रखा हुआ है। बाहर निकलना, मैं किसी से मिला ही नहीं हुआ 1 महीने, पिछले 2 महीने में आई हैव नॉट टॉक टू एनी पर्सन। शांति से रहो अपना। चलिए, तो कितने लोगों को फैक्ट एंड इशू का फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स apart from physical fact can also be fact and issue and a relevant fact. So fact can also be fact and issue or relevant fact. This definition that fact can be fact and issue or relevant fact was given by Justice Munir. This definition was given by Justice Munir. This is also being used by us. We also use this definition. तो अगर मैं आपको आज बात करूं, अभी बात करूं, अगर हम देखें तो फैक्ट कैन बी physical, fact can be mental. This physical fact can be fact in issue or relevant fact. This mental fact can be fact in issue or relevant. ठीक, so fact can be physical, fact can be mental. That means it can be perceived by senses, it can be conscious state of mind, or these physical states may turn into fact and issue, may turn into relevant. These mental state of mind may turn into fact and issue or may turn into relevant. How these physical or mental facts will turn into fact and issue or relevant fact, ये हम कल देखेंगे. We will go into the definition of fact and issue. So when a particular fact, whether mental or physical, will be considered as fact and issue, or whether a particular fact, whether physical or mental, will be termed as relevant fact. Tomorrow we will see this. तो कल हम इस पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे. आज तक का कितना को समझ में आया? ठीक है, मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 2 दिन और देखिए. देखो ये लो, यहाँ से यहाँ पे लड़ाई चल रही है रुहुल अमीन की, अर्शुल्ला खान साहब की, नाल खेबू की, है वेरी गुड. कोई तो ऐसा इस दुनिया में है जिसको अभी भी फुर्सत है इस बात से कि लड़ाई हो, है
My father's health is not good. We are struggling for his good health right now because his one eye vision has gone. They have gone for retina detachment firstly. Secondly, from yesterday's his sugar is not under control. It's gone beyond 400. So that's why I'm taking evening classes because मॉर्निंग उनको सुबह हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा मेरे को, तो उसके बाद वहाँ पे करके आई हैव टर्न इनटू ऑफिस। और अभी भी राइट नाउ आई विल गो टू हॉस्पिटल, तो मैं पिछले 15 दिन से शायद घर भी नहीं जा पा रहा। इट्स हॉस्पिटल हेयर ड्यू टेकिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, बट होपफुली ऑल विल go well. I am hoping things go in my favor. It does not go in my favor, then it will be a very hard time for me because I cannot leave this place until my father is well. And अभी right now is not well, but hopefully I'm hoping for this because अभी तो retina detachment है, तो retina detachment में my father will not having a vision of the eyes. So one eye's complete vision is gone, which will be recovering for 2 to 3 months. One eye vision is half, which also will take 2 months to recover. So we are working on that part, and now the sugar issue has also come. So let us see. Or due to COVID, I cannot go to Delhi or I cannot go to Bangalore or anywhere else. That is also an issue because he is prone to this. Because due to health issue, he cannot go into these areas. So उतना immunity weak हो जाता है ना, तो it is all. But everything will be okay. ठीक है। अर्श को मैं इसको एक बार अनम्यूट करते हैं। अर्श हैज रेज्ड। अर्श प्लीज आस्क द क्वेश्चन बेटा। अर्श यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ सर, आप सुन सकते हो मुझे? हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे आपसे पूछना है सर, अर्श खान नाम से कोई और भी हमारे बैच में आया है अभी? अर्शुल्ला खान तो आप ही हैं। सर नहीं सर, सर मैं अर्श खान नाम से अपियर हो रहा हूँ सर। अर्शुल्ला खान नाम से कोई और अपियर हो रहा है और वो इतनी देर से राहुल के साथ बदतमीजी कर रहा है और उसको उल्टे सीधे मैसेज भेज रहा है। वो मैं नहीं हूँ सर, दैट्स नॉट मी। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। बट वी ऑलवेज हैव यू एज देयर अर्शुल्ला खान साहब, तो कौन है अर्श के अलावा? नहीं सर, मैं अर्श खान नाम से अपियर होता हूँ सबसे पहले। वेरी गुड, आपने मुझे पता। बट वेयर ही हैज गॉन, ही हैज नाउ गॉन। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। और राहुल आप, हाँ सर राहुल शेयर आवर लिंक्स। तो मैं तो हमेशा अर्शुल्ला खान को इसलिए अलाउ किया बिकॉज़ आई थिंक इट वाज यू। नो सर, मैं अर्श खान नाम से अपियर होता हूँ। ठीक है, चलिए आइंदा से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं सर आपको प्राइवेटली बताना चाह रहा था, लेकिन उसने राहुल के साथ बदतमीजी करी, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर देता हूँ क्लास के सामने। राहुल को लगेगा मैं बोल रहा हूँ उसको। नहीं यार, रूल को कुछ नहीं लगना है। रूल को तो मेरे अलावा किसी का नहीं लगता। डोंट वरी अबाउट रूल, ठीक है। बट इट्स गुड यू मेक इट क्लियर, ठीक है। रूल को तो हमने फ्रीडम दे रखी है। रूल को मृदुल ने मारा था एक बार श्रेष्ठी ने मारा था, ठीक है। इसको कोई भी मारता बेटा। प्रभात ने एक बार इसको सड़क पे छोड़ दिया था, तब से आया नहीं हमारे पास, ठीक है। तनु और श्रेया ढूंढ रही है इसको, ठीक है। अर्जुनी ने बंदूक निकाली हुई है इसके ऊपर। इट्स वेरी कॉमन। या सर आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स आल्सो। हाँ कोई बात नहीं। कंचन और सीमा तो इसको कभी भी मार लेती है। इसकी जो अल्टो है उसके अंदर जितनी भी सामान टूटा वो इसके सर से तो फोड़ा है उन्होंने। डोंट वरी अबाउट इट। बट ठीक है, वी विल मेक श्योर कि मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ। तो अर्शुल्ला खान जो भी था उसको इसलिए अलाउ किया गया बिकॉज वो अर्श के नाम से आया था। तो अगली बार से अर्शुल्ला खान साहब नहीं आएंगे, है ना। बट ऑब्वियसली अगर कोई अर्शुल्ला खान के नाम से आया है तो हमारे पास से ही उसको गया होगा बिकॉज इट्स वेरी प्राइवेट, ठीक है। क्योंकि हमारी मॉर्निंग और इवनिंग बैच में लिमिटेड लोग हैं और एलुमनाइज को अगर कोई स्पेशली जाता है तो उनको जाता है। तो 40 से 50 लोगों के पास लिंक होता है, उसके बियॉन्ड तो कोई आता नहीं। बट वो ऑप्शन भी जल्दी खत्म हो जाएगा वंस आवर दिस ऐप इज वर्किंग। फिर ये वाला टेंशन भी खत्म है ना। डायरेक्ट ऐप से कनेक्ट करो, कोई आ ही नहीं सकता। तो ऐप में मेंबर है, वो ही रहेंगे। चलिए, अभी बाकी सब तो यही है ना। दीक्षा रंजन इज दीक्षा रंजन ओनली। श्रेया है, प्रभात है, राघव सूद ही है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। टुमारो एट द सेम टाइम 6 वी विल मीट, ठीक है। और प्लीज मृदुल ये उसको समझा लेना, रूल रो रहा है बेचारा, ठीक है। इसको फोन कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू।